Very good evening to all of you. And I really we appreciate you coming here, finding the time to join us here today for this special session. And I am Shivali Jaggi. I'm the senior faculty at the school. And on behalf of BPS team, I sincerely welcome you all on this platform today to this webinar. And I assure you that you will take something very important from here today. You're joining us is showing us that you support us and we are overwhelmed by your response. Today we are going to cement the bond between us so that it promotes a sound base to our children to grow and flourish in a loving and an amicable environment. Parenting is not an easy task, and nothing can prepare us to be a parent, especially the confusion and the stress that we face when a child appears to be learning in a different way than the rest of the child. To support and guide you in your such endeavors, wherever you face problems with the emotional problems of the child, the psychological problem of the child, the school, our principal ma'am, she is a very experienced person with these things, but an expert in her field is our school scholar, Miss Mala Vora. And I will like Mala ma'am to please join us. Please switch on your video if it is there and your mic and tell us about your counseling interventions. Good evening, ma'am. I'm Good handing over evening, the mic to you. Please. Good evening, Jaggi ma'am. Good evening, all the parents sitting with us and discussing about how basically, because for us, the agenda is the development of the child. See, at Bharatiya Public School, principal ma'am and school staff, management, we not only just focus on the academic development for the child, but for us, what is more important is the moral principles. What is more important is the behavioral aspect of the child. So we always deal with the behavior, communication, how the child is able to take care of his or her own needs, the self-care needs for the child, the communication skills, as well as moral values. My name is Mala Vora Khanna. I am child and clinical psychologist working with Bharatiya Public School from past 3 years. I would like to tell you people that whenever you people need my help, I will be there to support you in order to have the more better outcoming, better development for the child. You can email us any of your query if you have. We will share a Google form with you also. If you face any problem with the child or any development issues, you can always contact us. I'll share my email address in the message box in a while and you can contact us. In a school, we work a lot on behavior modification because for us, the moral principles, the values are very most important. Thank you, everyone. Thanks a lot. Now I hand over the mic to Jaggi. Thank you, ma'am. Thank you very much. We believe that a majority of parents do a terrific job and genuinely they do their best. However, we can make mistakes and there is no way we can know that whether we are doing what we are doing is right and wrong. So today we have this platform where we are going to request and we are very thankful to ma'am who has found time from her schedule to share her expertise and advice with us. Mrs. Savita Arora, our principal ma'am, is a great visionary. In fact, Dr. Savita Arora ma'am is a great visionary, a patient listener, and a lady of principles and substance. And her greatest love is to be with the children, amongst the children, especially the young ones who are nurtured over the time in her
environment that she provides, she nurtures that. And she has been facilitated with the National Teachers Award by the Honorable President of India for her exemplary and tireless efforts. A dedicated educationist, her prime focus has been the children. She has won many prizes and debates at national level and many accolades and rewards for her tireless efforts in the field of education. She has penned down numerous articles and poems related to children. And I would like to tell you that the series of Dewdrops, especially, she's working on the life skills, the values of the future generations, because she feels that the emotional quotient of the child must be as trained as the intellectual. She has penned down a series of books, Dewdrops, and ma'am is a resource person for CBSE, the Central Board of Secondary Education. This ma'am is a resource person for CBSE and conducts many workshops for them, for the teachers, for children on happy classrooms. And her subject expertise, English also, English of class 12. So we are very glad and sure, ma'am, we welcome ma'am that she is our leader, and we will like to hear ma'am, the speaker of the day, for her thoughts today. Ma'am, please, if you can switch on your mic, we will love to hear you. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are. I think you all have been told to mute yourself. I'm so sorry that I'm asking you whether I'm audible or not. So if anything you feel is not of your use and you can raise your hand, the host will keep your self on the screen and you can ask us. I think I should not waste my time, and this is a very different time when we are sitting like this and interacting and trying to interact with each other. ये तरीका बात करने का तो नहीं है. ऐसा लग रहा है कि आपको बोल दिया गया कि आप ना बोलें और हम बोलते रहें और आप सुने. माफी चाहती हूँ, ये दूरी है, इसलिए हम आपके प्रश्नों को बाद में लेंगे, पर हम आपको छोटी छोटी बातें जो हमें साथ लेकर चलनी है हमेशा एक अच्छे पेरेंट की तरह, वो हम आज करना चाहते हैं. I think I have to be bilingual because many people will understand me because I really want to reach you people. आपको आज पढ़ाना नहीं है, आप तक पहुंचना है. तो आप तक पहुंचने के लिए अगर हम उस भाषा में बात करें जो सीधे तरीके से सभी को समझ आती है, I think I'm okay with it. सब लोग अपना अगर कैमरा ऑन है, Please give a thumbs up. Okay, thank you. So आप सोच रहे होंगे कि आज हमने ये काम क्यों किया. जहां तक ओरिएंटेशन का सवाल है, प्रेजेंटेशन का सवाल है, we have already given you those things. So there is nothing new, but still life gives us a lot of I think chances to get into new experiences. So becoming a parent is a new experience, and then nurturing the child and cultivating a good and positive parenting is again an opportunity. I wish that parenting itself is always positive. हम अगर पॉजिटिव कह भी देते हैं हर पेरेंटिंग को तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर तरह की पेरेंटिंग एक पेरेंट अपने बच्चे की खुशी के लिए करता है और उसकी अच्छाई के लिए करता है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो
हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हम बच्चों से पूरी करवाना चाहते हैं, या चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल, वो भी एक जान है और उसको हमें किस तरह से पालना है, क्या कोशिश करनी है. आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू in my words today, but still we try to gather information from wherever we get and we try to become a good parent. हर कोई सोचता होगा कि मैं तो अपनी तरह अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ और मेरे बच्चों की जो देखभाल है या अच्छे तरीके से मैं ही कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता. इसीलिए छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए कुछ हम आज बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, what kind of things we should do, where I think बच्चे भी आपके आज सुन रहे होंगे, मुझे बहुत बहुत बच्चे भी साथ में ही बैठे होंगे क्योंकि इट्स द टाइम ऑफ लॉकडाउन, तो सब इकट्ठे ही हैं. तो कोई बात नहीं, आपकी कोई ऐसी बात नहीं हम करेंगे जिससे बच्चों को बुरा लगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको लगे कि हम आपको रियलिटी समझाने के लिए बच्चों के एग्जाम्पल्स या आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना चाहें. तो अब मैं किस तरह से आपको कहूं कि आप बच्चों को थोड़ा सा दूर कर सकते हो, पर दिस इज अप टू यू, आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे जिससे आपको रियलिटी तक पहुंचने में आसानी होगी. विल यू हेल्प मी आउट? इज इट ओके? Sure, ma'am. ओके फाइन, तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप बार बार अपने बच्चों की तरफ देखेंगे और बच्चे आपकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि शायद पापा मम्मी भी ऐसे ही करते हैं. ठीक है, तो देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा जैसे भी होगा. और माफी चाहती हूँ अगर कोई चीज पर्सनल आपको लगने लगे. आई विल बी टॉकिंग वेरी न्यूट्रल कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि जब तक हम उन बातों को नहीं याद रखेंगे हम अपनी पेरेंटिंग को सिर्फ पेरेंटिंग तक कर सकते हैं. पॉजिटिव करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है. आपके माइक्स ऑफ रहे, आपको डिस्टर्बेंस होगी सुनने में. सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू गाइज आर एट होम टुडे. आई थिंक आप लोगों को जिनके बच्चे इस एज ग्रुप के हैं शुड बी वेरी हैप्पी फॉर लॉकडाउन. बहुत ही खुश रहना चाहिए, बहुत ही खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा वक्त मिला जब आप एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए पूरा टाइम बच्चों को दे सकते हैं. जिस चीज के लिए बच्चे तरसते या आप भी कई बार कोशिश करते कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा या अब टाइम नहीं दे पा रही, अब हिस्सा सबसे बड़ा ये है कि क्या ये काम सिर्फ दे पा रही का ही है, या पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए, फादर को भी, कि हम भी पेरेंट का एक हिस्सा हैं. पेरेंट कंप्लीट नहीं होता है कभी एक से, पेरेंट मीन्स बोथ ऑफ यू. सो प्लीज, आई एम नॉट वेरी क्लोज टू लेडीज, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जेंट्स भी सब ये सुने, सभी फादर्स सुने कि आपकी भी ड्यूटी उतनी ही है जितनी मम्मा की है. रादर आजकल तो शायद ज्यादा हो जाती होगी. लॉकडाउन के पीरियड में काफी चीजें आपको लगती होंगी कि मैं जो संभाल सकता हूँ वो काम ये है कि मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ, तो आप कर रहे होंगे वो काम. एंड हेड्स ऑफ टू यू गाइस. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हाई इज देयर सो मच ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ? यू नो व्हाई? Because we focus too much on improving our lifestyles rather than improving our lives. सब दिखावे के लिए, सब एक दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में हम अपने चीजों को कई बार ऐसे सामने नहीं ला पाते जिससे बाद में फील होता है कि ये कुछ गलती तो हमसे हुई है, लेकिन किस वक्त हो गई ये नहीं पता. तो वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग वक्त यही है आप लोगों के लिए जब आपके बच्चे 3 to 4 years के हैं, because they are building up their character, their values are being ingrained at this important time. और इस टाइम को बहुत से पेरेंट अभी छोटा है, अभी छोटी है कह के छोड़ देते हैं. यही हम गलती करते हैं. यही टाइम है जब हमें बच्चों को वो चीज देनी है जो हम उनसे चाहते हैं बड़े होकर भी वो ही करें. छोटी छोटी इग्नोरेंस हमें उस वक्त नहीं याद रहती, लेकिन हम
अपने तरीके से कोशिश करते हुए भी बहुत सी गलतियां कर जाते हैं. So first important thing in life of parents of your age is to time out yourself. आप लोगों को सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को पूरा टाइम देना है. अगर आपने पूरा टाइम दिया तो मैं नहीं समझती कि आपकी पेरेंटिंग में कोई भी कमी रह सकती है, क्योंकि टाइम दोगे तो आप नेचुरली, पेरेंट्स तो क्वालिटी टाइम ही देंगे, कुछ गलत चीज सिखाने के लिए नहीं बैठेंगे बच्चों के पास. तो ऑफ कोर्स बहुत सा अच्छा काम पॉजिटिविटी को देखते हुए हो जाता है. सो वॉक अवे द ट्रस्ट बटन. आपको उनका ट्रस्ट पैदा करना है, उनके अंदर भी ट्रस्ट पैदा करना है और उनके लिए खुद भी ट्रस्टवर्दी होना है. क्योंकि बच्चों को कभी कभी टाइम देते देते हम उनके दोस्त तो बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ये चीज रहती है कि आई एम योर फादर, आई एम योर मदर, डोंट से लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस, वट एवर आई एम सेइंग इज राइट. ऐसा टाइम नहीं देना है. दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, लिसन टू हिम और हर. बच्चे की बात को सुनो. अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है, आई रियली वॉन्ट टू पे माई एक्सक्यूजेज अगर बच्चे सुन रहे हैं और आपकी इस बात के ऊपर आपको एनकैश ना करें वो बाद में, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. एम आई ओके विद इट? यस पेरेंट्स? Yes. Okay, good. Yes, ma'am, we have a lot of thumbs up coming up. You have to take Yes, care. ma'am. They'll be taking Yes. care of them because I'll Yes, be very ma'am. personal in giving you the examples. क्योंकि मुझे Yes, ma'am. वो बातों के बारे में ही बात करनी है कि बच्चे आपकी तरफ देखें और फिर आपको एनकैश करें बाद में कि देखो मैम ने Yes, कहा. ma'am. We have So- lots of yes, ma'am, in comments. Okay, be careful. Second thing which I really wanted to tell you is टाइम तो आपने दिया, वो भी बता दिया कि किस तरह का टाइम आपने देना है. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आपको टाइम देते देते यू हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल बनना है आपको. अब एग्जाम्पल आप कैसे बनेंगे? आपको सोचना होगा कि मैं पेरेंट्स बन गया, बस दैट्स ओके. अब एग्जाम्पल बनने के लिए मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं उसके लिए एक एग्जाम्पलरी लाइफ पेश कर सकूं. एग्जाम्पल बनना इज नथिंग लाइक कि आपको कुछ स्पेशल बनना है. आपको वो बनना है जो आप उसको बनाना चाहते हो. अगर आप उसे सच्चा इंसान बनाना चाहते हो तो आपको सच्चा बनना है. अगर आप उसे एक बहुत ही खुशनुमा इंसान बनाना चाहते हो तो आपको भी बहुत खुश रहना है. अगर आप गुस्से में बच्चे को कहेंगे कि आप बहुत चिड़चिड़ करते हो, बहुत रोते हो, बहुत टेंट्रम्स हैं आपके, आप ऐसा करते हो, सो डोंट यू एग्री विद मी कि आपके टेंट्रम्स भी उतने ही हैं? अगर आप इस तरह से उससे बात कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी होगी कि प्यार चाहिए तो प्यार ही देना होगा. और लव बिगेट्स लव, मिलता भी तभी है. नहीं तो आप कहें कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते हो इसलिए मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा. डोंट से लाइक दैट. वो बच्चा है, उसको समझाना पड़ेगा. ओके, कभी कभी उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और फिर उसके सामने अपने तरीके से करके दिखाना पड़ेगा. सो दैट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ही विल जस्टिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. वो कर लेगा. उसको खुद ही अच्छा लगेगा जब आप उसकी गलती को भी प्यार से समझाओगे तो वो आपसे कभी भी आगे से टैंट्रम्स भी नहीं शो करेगा और कोशिश करेगा कि आपको अपनी बात नॉर्मल से ही कहे. अब इसके बाद हम जो चाहते हैं वो ये है कि आपको बच्चों को जब भी समझाना हो, जब भी कोई बात करनी हो, यू हैव टू टॉक एट द चाइल्ड्स लेवल. बच्चों के साथ बच्चों की बातें, बच्चों की तरह की बातें. उनको बड़ी से बड़ी बात भी उस तरीके से समझानी है कि आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं. ही इज नॉट अ मैच्योर माइंड, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हो अगर आप सीधे सीधे कह देंगे. आई टू आई उसका कांटेक्ट, कभी कभी तो आपको उसके लेवल पे भी आना पड़ेगा, उसके साथ नीचे होके बात करनी पड़ेगी. जितना आप ऊंचे होकर बात करेंगे नीचे देख के, वो फिर वो रिलेशन एक अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा. ऑलवेज बिकम अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड और उससे ऐसे बात करो कि उसमें उसकी रिस्पेक्ट भी उसको नजर आती है. जब आप उसको सुनाने के लिए, उसको बताने के लिए उसकी हाइट के हो जाओगे, नीचे आ जाओगे, झुक जाओगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो उसे लगेगा कि मेरा कोई
मेरी रिस्पेक्ट हो रही है और कंपैशन बढ़ता है, एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ता है। एंड आई विश दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जब जब हमने अकड़ के बात करनी है तब तक हम बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी फिर जल्दी ही हमसे उसी तरह से बात करेंगे। सबसे जो एक जानने योग्य बात है वो ये है कि आप लोग सोचते हैं कि बच्चे हमें मैंने तो कभी नहीं सिखाया बच्चों को ऐसे जोर से बोलना, लेकिन बच्चा कहाँ से सीख गया? क्यों? क्योंकि मैं ये भूल जाता हूँ या ये भूल जाती हूँ कि जब हम आपस में बात करते हैं तो हम किस पिच में बात करते हैं। बच्चा कभी भी कुछ पढ़ाने से नहीं सीखेगा, वो देख के सीखेगा। तो जो आप कर रहे हैं वो तो उसने ऑटोमेटिकली सीख लिया, उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। इसलिए करो ही अच्छा, ताकि वो जो भी सीखे वो उसको आपको कभी भी टोकना ना पड़े, क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लगेगी। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप उसके दोस्त बनकर बात करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे और ये चाहेंगे कि बच्चा ये समझ जाए कि आप उसके साथ हैं। आप उसको डांटेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे नहीं, और उसको हर वक्त ये रॉब से नहीं बात करेंगे कि आई एम योर फादर। ठीक है? तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नाउ जब भी आप उसे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ऐसे एक्सप्लेन करिए, यू मे टेक अ स्टोरी फॉर्म। आप स्टोरी फॉर्म में ले सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कोई एग्जाम्पल ऐसा दे दें, चाहे अपनी लाइफ का या छोटा छोटा कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देके भी आप कर सकते हैं कि बेटे देखो, अगर आप ये ऐसे करोगे, इस चीज से खेलोगे तो इससे आपको क्या नुकसान होगा। लेट्स से अ मैच स्टिक, you don't want him to play with matchstick and the child is playing with it, you cannot, you can do tantrums, whatever it is. अब आप कोशिश करेंगे कि आप किस तरह उसे इस चीज के लिए, हर बार टोकना अच्छी बात नहीं, टोकने के साथ अगर आप उसको ये कहें कि देखो बेटा, अगर आप ये करोगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम। देखो, कोई भी चीज ठीक करनी है तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो मेरा पहला जो आपसे निवेदन था या पहली जो प्रॉमिस थी वो यही था कि टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा और इसी पीरियड में लगेगा जब तक बच्चा प्राइमरी एजुकेशन नहीं कर लेता। आप समझ लीजिए 10 से 11 साल तक बहुत टाइम उसको देना है। वैसे तो आप अब हंसेंगे कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उससे भी ज्यादा देना है, और फिर और बड़े हो जाएंगे तो फिर और ज्यादा देना है, क्योंकि उनकी हर हरकत पे आपको नजर रखनी है। तो या ना माने, पेरेंटिंग इज एक्चुअली ये इनहेरिटेंस होता है, हमें मिल जाती है, अब हमें देनी है दूसरे को, तो सारे जीवन भर हम देते ही रहेंगे और बच्चे हमसे लेते ही रहेंगे। तो दे क्या, खुशियां दे देना, अच्छी बातें दे दे, और जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। अब आप ही बताइए, अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम ही तो आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कुछ और निकल जाएगा। तो व्हाट यू वांट यू हैव टू सीड भी वही लेना चाहिए। आपके पास आपका सीड ही आया है, लेकिन आपने उसको एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा देख लिया। आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, और हम कोशिश नहीं करते कि हम उसकी भी बात सुने और हम उसे एक्सेप्ट कर लें, हम उसे वैसे का वैसे ही ले लें, मान जाए कि मेरे बच्चे में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसे ठीक कर लूंगा, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसकी हर बात पे। अगर उस बच्चे को खेलना पसंद है, पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप उसको डांट कर, मार कर, किसी भी तरीके से होमवर्क करना है, जी पढ़ना है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते हो, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी अपने ही भाई बहनों से कंपैरिजन कर लेते हैं, कभी पड़ोसियों से कर लेते हैं, और कभी अपने आप से भी ऐसा एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि जब मैं तुम्हारे जैसा था हम तो ऐसे करते थे। तो अच्छी बातें भी कर सकते हैं हम, जो हमारी अच्छी बातें हैं। जैसे हम जब कॉलेज में थे तब हम साइकिल से जाया करते थे और इतना मजा आता था, एक्सरसाइज भी हो जाती थी। आज के बच्चे 7th 8th में आते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें स्कूटी चाहिए, और पेरेंट्स ले देते हैं। तो ये टेंट्रम्स देखिए आप, किसकी गलती है? इसलिए अब यहाँ तक आपके बच्चे भी पहुंचेंगे, लेकिन उस टेंट्रम तक पहुंचने के लिए अगर अभी से आपने उनको अच्छा दोस्त बनाया है तो वो नहीं मांगेंगे आपसे ऐसी चीजें, वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनको टाइम टू टाइम अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर ऐसा बना चुके हो कि वो समझ चुके हैं कि मुझे, एंड यू नो एवरी चाइल्ड सेज माय डैड इज माय हीरो।
मम्मी को पता नहीं हीरोइन कहते हैं कि नहीं, लेकिन डैड इज ऑलवेज अ हीरो। तो मैं आज बहुत ही ज्यादा इस बात से खुश हूं कि मुझे डैड्स भी मिल रहे हैं साथ में बात करने को। अगर मैं यही चीज स्कूल में बुलाती तो शायद बहुत से पेरेंट मम्मियां ही आती और ये हो जाती। लेडीज आज बहुत खुश हो जाएंगी देखना, क्योंकि वो समझ जाएंगी कि उनका 50%, अब वो एक्चुअल अर्धांगिनी बनेंगी, 50% काम उनका दूसरे लोग करना शुरू कर देंगे, पापा भी पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सो अब हम अपनी सीरीज में चल रहे हैं। टाइम हमने आपसे मांग लिया, हमने आपसे रिक्वेस्ट कर दी कि आप उससे अच्छी बातें करेंगे और एग्जाम्पलरी बातें बताएंगे अपनी। दूसरी बात बताएंगे कैसे, उसके साइज का होकर, उसके पास आकर, उसको समझाकर, उससे दोस्तों की तरह बात करके। और अगर हम ये चाहें कि आगे चलकर भी आप जब भी उसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे, आप उसे एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस कुछ ऐसे देंगे जो उसके काम आएंगे। कोई ऐसी बात मत दीजिए कि हम तो नहीं करते थे, तुम्हें पता नहीं क्या है, तुम पता नहीं क्यों करते हो। इफ दे आर प्लेइंग ऑन फोन, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, बट एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए। बिकॉज आज ऐसे बच्चे काम कर लेते हैं, अभी एबीसी सीखते भी नहीं है, लेकिन उनको बहुत कुछ ऑपरेशंस फोन में आ जाते हैं और वो किसी भी तरीके से उसको करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कभी भी इस तरह की कोई बात होती है तो हम उनका साथ दें, उनके साथ रहें और इतने नैरेटिव बने कि हमें लगे कि हम स्टोरीज के साथ उनको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा ही देंगे जिससे बच्चा कुछ अच्छा मॉरल लेगा। आपने रामायण महाभारत भी आजकल देखी होगी बच्चों के साथ। थोड़ी ऊंची बातें हैं वो, ये बच्चे छोटे हैं, ये नहीं समझते हैं, बट आप उनके एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। अभी आप में से आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, उत्तर रामायण भी आई थी जिसमें लव कुश अभी सारी स्टोरी थी। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी चीजें अगर उनको सुनाई जाए, बताई जाए, नानी दादी के जो खेल होते हैं छोटे छोटे उनके साथ खेले जाए, तो दिस इज द बेस्ट पीरियड, बेस्ट टाइम। लॉकडाउन को आप नॉकडाउन कर दीजिए। डोंट वेट कि कब खुलेगा, कब मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं तो थक गया, मैं थक गई, ये सब नहीं सोचिए उनके सामने। ये सोचिए कि इतनी बड़ी जन्नत मुझे मिली है कि मेरा परिवार मेरे साथ है भी, और मैं इनको कितना सिखा सकती हूँ सब सिखा दीजिए। रादर मैं अपनी टीचर्स की मीटिंग में यही बोल रही थी कि इट्स वेरी गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, रादर कि पेरेंट्स बच्चों को मिल गए हैं जिसके लिए हम उनसे बेग करते रहते हैं, हम उनसे कहते हैं इनको टाइम दीजिए, इनको घर में टाइम दीजिए, फिर वो थोड़े दिनों में रैश आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। बट ये 2 महीने भी अगर आप उनको बहुत अच्छे दे देंगे तो आप हमारी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर दैट। सो बी लविंग एंड फर्म, 2 वर्ड्स हैं इसमें, एक लविंग और एक फर्म। लविंग का मतलब आप जानते हैं, फर्म का मतलब मुझे थोड़ा सा समझाना होगा कि अगर आपने बच्चे को एक किसी चीज के लिए मना करना है कि ये चीज अच्छी नहीं है, आपने नहीं करनी है, तो आप फर्म रहिए कि आप उसको समझा कर ही रहेंगे, चाहे वो उसे समझाने में आपको देर लग जाए। फर्म भी रहना है, लविंग भी रहना है, और साथ में मजे की बात ह्यूमरस भी रहना है। ह्यूमरस कैसे होता है? हंसते हंसते समझाना किसी भी बात को। वैसे तो ह्यूमर तो आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं पेरेंट हूं, ये छोटा सा बच्चा, इसको क्या मैं हंसाऊं और इसके साथ क्या हंसूं, आई थिंक मजेदार चीजें। अब आप देखिए बच्चे छोटी छोटी बातें जो करते हैं, उन बातों को अगर आप रिजॉइस करें तो शायद उससे अच्छी बातें दुनिया में होती नहीं है। आपको आप तरसेंगे भागने की, ये तो अब इतना छोटा, जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो आप सोचेंगे अरे वो टाइम बहुत अच्छा था, when the child was playing with me, he was laughing with me। हम उस चीज को सोचते रहेंगे कि हम किस तरह से वो टाइम लाएं। तो आज का टाइम खोना नहीं, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मुझे इस तरह से आपसे बात करनी पड़ी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से क्रेविंग थी मुझे कि मैं पेरेंट्स को बुला के किसी तरह ओरिएंटेशन कर दूं, बट वो तो हो ही नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है आप ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी चीजें तो समझ जाएंगे। एक फेस टू फेस एक्सप्रेशन से अच्छा लगता है किसी को सुनना, तो आपको सुन के समझ आएगी। बच्चे आपको बार बार कहेंगे मैम ने ऐसा कहा था, अब वो आप देखिए जैसे भी आप उसको संभालेंगे, दैट इज योर जॉब। नाउ द थिंग इज you have to communicate everything which is age appropriate। एज अप्रोप्रिएट को समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? जो बच्चे की एज है उस एज के हिसाब की बातें होनी चाहिए, उसको बड़ी बड़ी बातें मत बताइए,
क्योंकि बहुत बड़ा भी उसको समझ नहीं आएगा, और बहुत छोटी सी बात पे उससे झगड़ा करना वो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो बच्चा है तो उसकी जो भी चीजें हैं, जितनी उसकी लिमिट है, जितना उसको आपको लगता है कि वो अच्छे से समझ पाएगा, उतनी बातें उसके साथ करिए। एक बात का ध्यान रखते हुए कि आपने कभी भी नो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो पेरेंट्स का आदत होती है पेरेंट्स की ये कहना, डोंट डू डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, नो बेटा नो, डोंट शाउट। नहीं बोलना है ऐसे। आपको कैसे बोलना है अब ये भी बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पूछ नहीं सकती कि आप कैसे बोलते हैं, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। आपको ये बोलना है कि बेटा आप धीरे बोलो, कितने अच्छे लगते हो, आराम से बोलो, ये करो। अब फिर वही चीज है कि शायद आपको बहुत सारी बातें करनी पड़े, एग्जाम्पल देने पड़े। और एक बात आपको याद रखनी होगी कि जितनी बातों पे आप जोर जोर से नो नो करते हो ना, याद रखना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने आपसे ये सब कॉपी किया हो, कहीं उसने कभी आपको जोर से बोलते हुए सुन लिया हो। तो अब अभी तो नहीं बोलेगा, पर थोड़े दिनों में ही मे रिवर्ट एंड ही मे से मैम पापा यू आल्सो डू इट, आप भी तो ऐसे ही करते हो। सो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए हमें, अब मैं थोड़ा घबरा रही हूँ कि बच्चे हैं इसलिए ज्यादा बातें नहीं करनी है, और बच्चों के साथ साथ उनकी दादी भी हो सकती है, सब हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, घर में ऐसा होता रहता है। कभी कभी मम्मा पापा को समझाना चाहते हैं तो दादा दादी रोक लेते हैं। प्यार, उनके पास इतना प्यार है कि वो फिर वो प्यार इस समय दिखाते हैं और रोक लेते हैं बच्चों को कि मत डांटो मत डांटो। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी जगह अच्छा बोल रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये सोचना है कि नहीं अब मैं कुछ कहती हूँ तो दादा दादी रोक लेते हैं। कभी प्यार से दादा दादी को भी समझा दो कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट हुए हैं, तो पापा ऐसे नहीं। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे हुआ करते थे, अब 1 या 2। तो सारा प्यार हम उन्हीं को दे रहे हैं, और वो प्यार है कैसा ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब फाइनेंसर बन जाएं, बस एक स्कूल के लिए आप सोचें कि बस वी आर पेइंग फीस, दैट्स इट, हम तो जो मांगता है दे देते हैं, हमने तो कभी इसको मना किया नहीं। तो आप आज तो दे देते हैं, लेकिन कल उसकी डिमांड्स जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर आप दे नहीं पाएंगे। तो इट्स बेटर टू गेट इनटू द थिंग्स व्हिच आर रियली अ कप ऑफ टी ऑफ योर्स। दूसरों मतलब इस तरह से कोई काम ना उनके साथ करें जिससे उनको बार बार ये लगे कि मैं तो बहुत पैम्पर्ड हूँ, मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे पापा, और मैं जो मांगता हूँ पापा दे देते हैं, और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो नेवर से नो का मतलब ये नहीं है कि आप नो ही नहीं कहेंगे किसी भी चीज के लिए, वो कैसी भी हो। डांटने वाला नो नहीं कहना है, लेकिन अगर कोई चीज उसके लिए ठीक नहीं है तो उसको कहेंगे कि बेटा दिस कैन बी डन इन दिस वे। अच्छा, नो कहने के लिए तो आप कहेंगे अगर खिलौना मांगेगा तो आप खिलौना नहीं देने के लिए, आपने तो कहा नो नहीं कहना, तो मैं उसको लेके ना दूं या ले दूं, क्या करूं? तो आप ये उसको समझाना पड़ेगा आपको कि बेटा हमारे पास ऐसा ही एक और खिलौना पड़ा है, या मैं आपको इसकी जगह कुछ और लेके दूंगा, ये खराब हो जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। वो धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन आप नो वर्ड का मतलब ये मत लेना, नो मीन्स ऑलवेज नेगेटिविटी बच्चे के अंदर नहीं डालनी है कि हर काम के लिए उसको नो नो सुनना पड़ता है। तो वो बहुत एक दिन तंग आ जाता है बच्चा कि मुझे हर समय नो नो बोला जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है, उसके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। बिकॉज व्हाट वी listen every time, what we eat every time, what we see every time, what we think every time makes us positive or negative. तो पेरेंटिंग के लिए भी आपको कोशिश करनी है कि खुद भी बहुत खुश रहें हमेशा, खुद भी कोशिश करें कि आप हमेशा बच्चों के साथ हैं और हमेशा बच्चों के सामने स्माइलिंगली बात करते हैं, ताकि वो भी आपसे प्यार से बात करें। छोटी छोटी बातें उसके कान में जाके धीरे धीरे बोलो, जोर जोर से आपने भी नहीं बोलने। अगर आप जोर से बोलेंगे तो डेफिनेटली ही विल रिवर्ट एंड ही विल डू दैट थिंग ओनली। अब साथ में एक बात और, दैट यू हैव टू कीप योर वर्ड, प्रॉमिसिंग। कीप योर वर्ड मीन्स आपने अगर कह दिया बेटा हम कल आपको लेके जाएंगे, और आप कल आया, तो बच्चा तो भूलता ही नहीं है कभी भी। बच्चा तो कहेगा पापा आपने कल कहा था कि कल लेके जाएंगे, तो आपको ले जाना पड़ेगा। आपको उसकी या तो ऐसी प्रॉमिस मत करो जो आप पूरी नहीं कर सकते। अगर आपने प्रॉमिस किया है
तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करो, और ये चाहते हुए कि जो भी आप कर रहे हो बच्चे के लिए अच्छा ही कर रहे हो, ये सोचते हुए आपने काम करने हैं। एनीवेज, आपको अगर लगता है कि आप अगले दिन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो गिव हिम द स्ट्रॉन्ग रीजन, गिव हिम एवरीथिंग विच यू रियली वांट टू टेल हिम, कि शेयर करना। इससे कभी कभी क्या होता है, बातें कौन सी छोटी हैं और कौन सी बड़ी हैं इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वक्त होता है कि उस वक्त क्या चीज बच्चे को बतानी जरूरी है, ताकि रिएक्शन में चेंजेस ना आए, जो बच्चे ने रिएक्ट करना है वो अच्छा हो जाए। और हम, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वी ऑल always feel to become, am I audible to all of you? Jaggi ma'am, am I okay? Yeah. Yes, ma'am. Okay, fine. Why is there so much of stress in life? I told you कि लाइफ में इतना स्ट्रेस है, हम सोचते हैं पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस है। सो ये सब इसलिए क्योंकि लाइफ स्टाइल को बदलने पे फोकस कर रहे हैं हम उसी वक्त को कैसे अच्छा बना रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं, आगे का हमें पता ही नहीं। हम अपनी पूरी लाइफ के लिए अगर एक बच्चे को ये सिखा दें कि बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं की जगह आप बोलिए हमेशा सच बोलो बेटे, ये भी पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नो नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। झूठ नहीं बोलते एक नेगेटिव बात है, बात ठीक है, लेकिन नहीं बोलना मत बोलो, क्योंकि उसने आपकी बात सुन के नहीं बोलना है, उसने तो जो आपको उसने देखा, अगर कभी आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कह दो पापा घर पे नहीं है, तो फिर वो कैसे नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा। इसलिए ऐसी चीजों के लिए आप हमेशा ये बोलो कि बेटे सच बोलना चाहिए, कहने से नहीं होगा, आपको भी सच बोलना होगा। आप चाहेंगे कि आप भी सच बोले और बच्चा भी सच बोले, तभी बात बनेगी। तो यू हैव टू कीप योर वर्ड, जो कह रहे हो उसको करना है। अगर आप उससे मांग रहे हो ऐसी चीज तो वो भी करो। ये फर्क होता है लाइफस्टाइल को चेंज करना और लाइफ को चेंज करना। लाइफस्टाइल थोड़ी देर के लिए चेंज होता है और लाइफ हमेशा के लिए चेंज होती है। आज के लाइफस्टाइल से मैं आपकी लाइफ चेंज करना चाहती हूँ। आज हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, दूर दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये लाइफस्टाइल है, ये नया स्टाइल है एक बात करने का, और मैं इस स्टाइल से आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, प्रॉमिस करती हूँ इस बात का। आप भी करके दिखाएंगे और हम भी करेंगे। नहीं तो 14 साल के लिए तो वनवास है ही हमारे साथ। इस 14 साल के लिए सभी पापा राम बन जाएंगे, सभी मम्मी सीता जैसी बन जाएंगी और सब बच्चे लव कुश जैसे बन जाएंगे। कोशिश हमारी ये होगी, क्योंकि ये 14 साल एक लाइफ को बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम अगर वन नहीं जाते तो पुरुषोत्तम बन नहीं पाते, है ना। 14 ईयर्स समझ गए ना। नर्सरी में आप अभी हो, 12 तक पढ़ना है। नर्सरी प्रेप 2 ईयर्स, अनदर 12 ईयर्स, 14 साल। आप 14 साल हमारे साथ रहेंगे तो ये संग्राम है, ये आपके लिए एक्साइट है। Yes, somebody wants to say something? Yes, ma'am, that is very true. Okay, no, that I can read out. Yeah. कुछ बोलना भी चाह रहा है क्या कोई? चांस दे दो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। Anybody wants to speak? आवाज आई थी मुझे कुछ माइक पे, शायद किसी को लग रहा होगा कि मैंने वनवास क्यों बोल दिया, ऐसा है? और ऑल गुड? यही लग रहा है मैम कि वनवास क्यों है। अच्छा तो जिसको लग रहा है उसको मैं बात करती हूँ, सुन लेती हूँ उनकी बात भी। यस मैम, अच्छा लगा आपको जो 40 ईयर वनवास बोला आपने, वेरी गुड। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगा कि कोई कुछ कहना चाहता है। 14 ईयर्स इसलिए कहा कि ये 14 साल ना आप सबको पुरुषोत्तम बनाने वाले हैं और बच्चों में वही सब भाव डालेंगे हम जो लव कुश में थे। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपका ये। हाँ जी, हम अकेले नहीं कर सकते हैं ये काम, सेक्रीफाइस है ये आप लोगों का। तो आज की मीटिंग में आपको यही समझना है कि जब तक बच्चे आप तो जितने भी बड़े हो जाएंगे तब तक उनके लिए पेरेंट ही रहेंगे और उनको सिखाने के लिए आप बड़े ही रहेंगे। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा टाइम बच्चों के साथ, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे ही बने रहना है हमें, ठीक है। अगर हम बच्चों को कहते हैं कि आपको लेट्स से वी आर गोइंग टू टेल देम काइंडनेस, एक वर्ड हमने बोला, काइंड होना चाहिए आपको, बहुत दूसरों की मदद करनी चाहिए या कुछ इस तरह की बात हम उनको सिखाना चाहते हैं।
यू नो काइंडनेस इज नॉट अ डीड, कोई डीड नहीं है, ये कोई काम नहीं है कि हम काइंड है तो हमने काम किया, इट्स एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड है, ये बनाना पड़ता है वैसा। एंड एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन भी है कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं तभी पता चलता है कि हम कितने काइंड हैं। एंड इट इज एन एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन, एक एटीट्यूड है, एक एक्सप्रेशन है, एक लुक है और एक टच है। काइंड, आपको काइंड बनना पड़ेगा पहले उसको काइंडनेस सिखाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप चाहें कि वो एक बहुत ही मतलब अच्छा बच्चा बने, काइंड बच्चा बने, दूसरों की मदद करे, वो अगर आपको मदद करते हुए देखेगा तो बिना बोले भी करेगा, वो सारी चीजें आपको एग्जाम्पलरी। अब ये वाली बात होती है कि आप कह रहे थे कि एग्जाम्पल हम कैसे बने, लीड एन एग्जाम्पल मीन्स यू हैव टू डू द थिंग्स फर्स्ट। सच बुलवाना है तो आप बोलिए पहले, दूसरों को प्यार देना है तो आप दीजिए पहले, आप सब कुछ पहले खुद करिए। सबसे ज्यादा तो आप पहले टीचर हैं, और मेरे ख्याल से टीचर की जरूरत पड़ती भी नहीं अगर सभी पेरेंट्स इस चीज को समझ जाते और टाइम देने का उनको मौका होता, जो पहले हुआ करता था। जब हम पढ़ते थे तो बच्चे 5 साल के होते थे तो स्कूल जाते थे, अब बच्चे 2.5 साल के होते हैं तो स्कूल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि क्या है, घर में वक्त नहीं है ना लोगों के पास, दोनों मम्मी पापा को दे हैव टू गो टू अर्न ब्रेड, क्या करें। तो ये मजबूरियां हैं हमारी, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा सा टाइम मिले उसको तसल्ली से देंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि उस टाइम पे हम दोनों ने नहीं लड़ना, उस टाइम पे किसी से भी नहीं लड़ना, नॉट हम दोनों, घर में और भी जितने लोग रहते हैं सबके साथ प्यार से रहना है। और जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार वापस आएगा, रिवर्ट होता है प्यार हमेशा। प्यार को किसी चीज की और जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने धीरे बोलना है, आराम से बात करनी है और अपनी बात को समझाकर ही खत्म करनी है, ऐसे नहीं कि अधूरी छोड़ दें बीच में। यू नो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन समबडी इज क्राइंग, बहुत टेंट्रम्स होते हैं ना, बच्चों के रोना शुरू कर देते हैं, रोते रहते हैं, तो मैं समझती हूँ अगर पेरेंट्स बहुत तंग आ जाएं कि वो रो रहे हैं तो आप इतना भी कह दें उसको कि बेटा यू टेक योर टाइम, गो टू योर रूम, वहां रो लो जितना रोना है, जब आपका मन करे, जब आप रो चुके हो तब आ जाना, छोड़ दो, गेट अवे, वहां से अलग हो जाओ। क्योंकि वो रो रहा है, आप उसको डांट रहे हो, रोता जाता है और वो आप उसको डांटते रहते हो, तो बात खिंच जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वो नहीं चाहिए। अब या तो आप उसे बोलिए कि बेटे ओके मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको रोना है आप रोते रहिए, जब आपका मन करेगा आप चुप हो जाएंगे, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, दैट्स इट। लेकिन रिएक्शन किसे रोकना है, कंट्रोल किसे करना है, बड़े कर सकते हैं ना, छोटे नहीं कर सकते। और आपको एक बात बता दूं, रोना बहुत जरूरी भी होता है बच्चों के लिए। अगर वो रोते नहीं है ना तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमें भी नहीं लगता कि वो बच्चे हैं, वो रोएं, रोने की कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही छोटा सा जोक है, एक बार एक बच्चा रोने के लिए, आप पापा उसके मना कर रहे थे उसको कि आप रो क्यों रहे हो बेटा, रोना नहीं है, रोते रहते हो आप सारा दिन। कहता है 1 मिनट रुको और मुझे 1 मिनट और रोने दो। अब आप देखिए उस बच्चे की बात, 1 मिनट के बाद कहता है अब बोलो, रो चुका मैं। सो दिस इज समथिंग, रियलिटी बताई है मैंने, ये सच में मैंने ऐसे एक बच्चा देखा है जो इस तरह से उसने किया। तो मैं इस एग्जाम्पल को हमेशा कोट करती हूँ कि देखो बच्चे भी जानते हैं कि मुझे रोना है तो रोना है, मुझे रोने दिया जाए, तो हमें भी उन्हें रोने देना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर वो रो के थक जाएंगे, समझ जाएंगे, तो उनको अपने आप लगेगा कि अब हमारे को मम्मी पापा की जरूरत है। और वो My son do this with me sometimes, somebody is saying okay चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, जिस तरह से हम बताना चाहते हैं आप उनको रोने दीजिए। कहीं भी तो गई थी कोप भवन में, क्या हुआ, रोने दीजिए, जब जो होना है वो तो होना ही है, उसको तो हम टाल नहीं सकते, उसने रोना है थोड़ी देर तो रोने दीजिए। और रोने के बाद जब वो थक जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएगा और तब एक्चुअली वो रियलिटी समझ जाएगा कि आप ठीक कह रहे थे कि उसको रोना नहीं है। लेकिन अगर उसको रोते हुए को चुप कराने के लिए आप उसके टेंट्रम की वजह से रिएक्ट करेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उस वक्त वो मूड नहीं है उसका कि वो कुछ समझे, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हाट आई फील टू से इज दिस कि आप, मुझे तो लगता था, मेरा मन
अगर हम पर्सनली बैठे होते तो बहुत मन था कि आप लोगों से कुछ एक्सपीरियंसेस सुनूं और देखूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे कम सुन पा रही हूँ और अपनी बातें ज्यादा कर रही हूँ। अब बात आती है कि अगर रोया भी है बच्चा, कोई बात नहीं, आपने रोने भी दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो एक टिप है जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि फोकस ऑन द रीजंस बिहाइंड द एक्शन। जो भी एक्शन उसने किया है, रोया है या टेबल पे चढ़ रहा है या बेड पे कूद रहा है, कोई भी ऐसी चीज कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है और आप उसको तंग कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप उसके एक्शन के पीछे रीजन क्या था, उसने ये किया क्यों। आजकल करते होंगे बच्चे ऐसा, क्योंकि बाहर जा नहीं रहे, वो खेल नहीं रहे, उनकी एनर्जीज कहाँ जाएंगी, सारी मम्मी पापा के साथ ही चलेंगी सब। तो सब मजे से एक दूसरे के साथ खेल रहे होगे आजकल, चाहे बेड पे ही खेल रहे होगे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मम्मी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दुखी मत होना और अपने किचन का भी लॉकडाउन टाइम रखिए, 9 बजे लॉकडाउन, उसके बाद किचन में घुसने के लिए कोई ना बोले। सभी मम्मी सुन रही है ना मेरी बातें? हाँ, और सब बाकी भी जो सुन रहे हैं ध्यान रखें कि लॉकडाउन में मम्मी के बाद उस टाइम के बाद किचन में नहीं जाएंगे। नॉट पॉसिबल मत लिखिए, आप कर सकते हैं, एक नियम बनाइए। अब अगली बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो यही है, और शायद इसको मैं आखिरी बात ही रखूंगी, कि सारी बातें सॉल्व होती हैं अगर हम फर्म डिसिप्लिन के साथ करते हैं। अगर डिसिप्लिन हम घर में मेंटेन करेंगे तो हमें डिसिप्लिन मिलेगा बच्चे के अंदर, उसको बिल्कुल भी आपको कभी समझाना नहीं पड़ेगा कि ये चीज ऐसे करो या वैसे करो। ओके, प्राइमरी रोल मॉडल बनना ही है आपने, वो तो बात आप समझ ही चुके हैं कि आप रोल मॉडल कैसे बनेंगे। पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, तो येल ऑन देयर चाइल्ड, चिल्लाते हैं बहुत जोर से बच्चों के ऊपर, और आप ये समझ सकते हैं कि जब आप बच्चों पे चिल्लाते हैं और आप सोचते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा भी ये जानता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, तो मैं क्यों बताऊं। सो यू हैव टू बी काइंड, आपको जितना भी हो सके प्यार से बात करनी है। नेवर इक्वेट काइंडनेस टू परमिसिवनेस। परमिशन की बात नहीं है, काइंडनेस का मतलब है कि जिस चीज के लिए आपको उसे समझाना है कि ये गलत है तो उसे समझा कर रही है, लेकिन वैसे प्यार से समझाइए उसको। वो मत करिए, मिक्स मत करिए कि इसका मतलब वो जो कर रहा है वो करने दें और हम उसको कुछ ना कहें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ओनली दिस कि आप जिस भाषा में बात करें आप ऐसे करें कि बच्चा उसे एक्सेप्ट कर ले कि आपने जो बोला है वो ठीक ही है, तभी वो चुप होगा। और फर्म एंड काम, no one is better than a loud and mean no। अगर हम फर्म और काम नो कहेंगे ना, मतलब प्यार से और तसल्ली से कि नहीं करना बेटा ये काम, अगर हम इसमें भी नो कह रहे हैं, फर्म है वो हमारा नो कि हम करने नहीं देंगे आपको ये चीज, हम समझा ही देंगे कि क्यों नहीं करना है, वो जोर से बोलने से लाख गुना अच्छा नो है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप चिल्लाकर, डांट कर, गुस्से से कोई बात नहीं करें। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आप बिलीव मी, आपके बच्चे, आपकी प्रैक्टिस जो होगी ना डिसीजन लेने की कि कब आपने उसके साथ किस तरह से बात करनी है, वो आप धीरे धीरे उसको, यू आर गिविंग दिस प्रैक्टिस टू हिम, उसको प्रैक्टिस हो रही है कि मम्मा मैं डिसीजन ले सकता हूँ अब अपना, क्योंकि वो देखता ही घर में ये चीज है कि मम्मी हमेशा सख्त नहीं है लेकिन कभी कभी सख्त होती हैं, और वो समझ जाता है कि कब होना है कब नहीं होना। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, जो आपको लेटर ऑन स्टेज में पता चलेगा कि क्या होता है, अभी नहीं पता चलेगा, बट आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपना टाइम बिता सकते हैं। लॉकडाउन के लिए ये स्पेशल क्लास नहीं थी, पर स्पेशल इसलिए बन गई क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में अगर आप चाहेंगे तो ये सब चीजें काम आ जाएंगी और आप एक अच्छे पेरेंट साबित हो जाएंगे। एंड प्लीज बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा काम है, जिसके लिए आई मस्ट टेल यू दैट नो वन इज बोर्न विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लर्न्ड एंड अर्न्ड विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आता है।
जब वो धीरे धीरे आप उसको बड़ा करेंगे, बड़ा मीन्स उसको, उसकी बातों को बड़ा करेंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसको समझ आने लगेगी कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ और मैं बड़ा हो गया हूँ। और वैसे तो ये प्यारे प्यारे बच्चों को देखने का मेरा बहुत मन था आज। अगर अभी लास्ट में मुझे होस्ट जो है मीटिंग के अगर कोशिश करेंगे तो मैं कुछ स्क्रीन पे लोगों को देख पाऊंगी। मैं आप लोगों से, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इस तरह से फिर भी मिल सकते हैं किसी दिन। आप टीचर्स को बताइए सो दैट वी कैन मेक अ डे, उस पर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन आवर्स को कर सकते हैं। हम ज्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, मेरी तो बात छोड़िए, मैं तो बोलती रहती हूँ चुप नहीं होगी, अब मुझे टाइम देखना है क्योंकि आप सबको भी काम करना है। सो आई लव यू ऑल, गिविंग यू अ फ्लाइंग किस किड्स, एंड आई विश दैट आप लोग अपने घरों में सेफली अपनी मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं और दादा दादी के साथ। आप इनको, अगर दादा दादी साथ नहीं रहते हैं तो वीडियो कॉलिंग करिए, नानी से दादी से वीडियो कॉलिंग में बच्चे कई बार बहुत खुश होते हैं और उनका टाइम भी अच्छा पास होगा। आपने देखा होगा कभी कभी दादी का फोन आता है तो वो लेके अलग कमरे में भी चले जाते हैं कि मुझे बात करनी है, शायद आपकी शिकायतें लगानी होती होगी, पर जो भी है वो अच्छा वक्त है और अच्छे तरीके से रहेगा। डोंट लीव, वी वुड लाइक टू लिसन 1 or 2 questions from you. Thank you so much for listening me. पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ चला गया। Thank you. Good luck.